Okay, good evening to all of you and welcome to all in Minister classes. And yes, first of all, this is video lecture series on metal forming process, and this is lecture number 9. And in this lecture, I am going to discuss with you rolling process part 2. And especially in this lecture, I am going to discuss with you analysis of rolling process. Correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch. And my latest gate rank is IR 192 in GATE 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9 plus years of teaching experience for GATE and engineering services exam, and I have mentored 10,000 plus students across the India online as well as offline. So once again, welcome to all and good evening to all of you. Good evening Nikhil, Pratik, Rakesh. चलो फटाफट सभी ज्वाइन करो फिर स्टार्ट करें सेशन. Okay, analysis of flat rolling process. Correct? I am audible. Anyone? Pratik, I am audible. Okay. Now you can see here again, here we have two flat rollers in which we compress this particular material. Is it clear? For it reduction of its cross-sectional area, and especially as we know that this entire rolling process is performed under plane strain condition, then the whole cross-section area reduction is totally depends upon the reduction of height from H0 to HF. Yes or no? And now, as we know that in the metal forming process, the volume is remain constant. Yes or no? यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, this is the volume before deformation and this is the volume after deformation, and both volumes are same. Yes or no? Final volume and initial volume, both volumes are same. Correct? Okay, next analysis of flat rolling. तो start करते हैं दोस्तों. तो चलिए one by one. You can see here this is half figure. Yes or no? Because the entire rolling process is symmetric about its horizontal axis. Yes or no? इस axis के about दोस्तों ये symmetric होगा. Correct है. Simply you can say this is h naught by 2 and this is hf by 2. Correct? And you can see this is the radius and this is alpha, that is angle of bite, and this AC is a contact area, a contact arc where this roller can apply pressure or force to reduce this height. Yes or no? करेक्ट. तो दोस्तों यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, दैट इज रिडक्शन इन हाइट. फर्स्ट हमने देखा था रिडक्शन इन हाइट. वंस अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे. रिडक्शन इन हाइट या सिंपली दोस्तों इसे कहते हैं हम ड्राफ्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राफ्ट एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, एंड ये क्या होगा दोस्तों, एच नॉट माइनस एच एफ. इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी हियर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट ट्रू स्ट्रेन, अगर यहाँ पे आपको ट्रू स्ट्रेन पता करना है, देन सिंपली इट कैन बी रिटन एज ट्रू स्ट्रेन, दैट इज एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज ln फाइनल हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट. और ऑब्वियसली दोस्तों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हाइट में रिडक्शन हो रहा है, मींस कंप्रेशन हो रहा है. तो ये जो स्ट्रेन है दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेन. इज इट क्लियर? गुड इवनिंग ऋतिक, गुड इवनिंग कुशल. नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड वन, हमने नेक्स्ट फाइंड आउट किया था एंगल ऑफ बाइट. यस और नो? वंस अगेन यू कैन सी हियर एंगल ऑफ बाइट, और सिंपली इट इज ऑल्सो नेम्ड एज बाइट एंगल. यस और नो? और ये बाइट एंगल क्या होता है दोस्तों, अल्फा. और अल्फा हमने फाइंड आउट किया था विद दिस रिलेशन, दैट इज कॉस इनवर्स. और इसका डिटेल डेरिवेशन मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था दोस्तों, वहां पे आप जाके देख सकते हो अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है. करेक्ट है? तो ये आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2r. करेक्ट? तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन इजिली फाइंड आउट द एंगल ऑफ बाइट. नेक्स्ट यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों, दैट इज प्रोजेक्टेड लेंथ. एंड फ्रॉम दिस फिगर द प्रोजेक्टेड लेंथ इज नथिंग बट दिस इज ए बी. और किसको प्रोजेक्ट करें दोस्तों हम, इस आर्क को. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्क है, दिस आर्क ए सी इज प्रोजेक्टेड. यस और नो? इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं
देन प्रोजेक्ट करना मतलब सपोज यू पास द लाइट फ्रॉम हियर, अगर आप यहाँ से लाइट पास करो तो आपको सिंपल से दोस्त ये एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ए बी लेंथ है, दिस ए बी लेंथ इज नथिंग बट दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ दिस कॉन्टेक्ट आर्क, यस आर नो, जो एसी कॉन्टेक्ट आर्क है इसका प्रोजेक्टेड लेंथ है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म दैट इज एलपी, यस आर नो, करेक्ट। और इस एलपी की वैल्यू दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किया था, दिस एलपी इज square root of r delta h, square root of r delta h, is it clear? So with the help of this relation you can easily find out the projected length। और यहाँ पे दोस्तों रिडक्शन इन हाइट मैंने आपको बताया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो ए नॉट माइनस ए एफ अपॉन ए नॉट माइनस ए एफ अपॉन ए नॉट इंटू 100, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट, परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज एच नॉट माइनस एच एफ बाई एच नॉट इंटू 100, इस तरीके से। अब क्वेश्चन आता है कि ये ए नॉट और ए एफ है क्या, तो दोस्तों ऑब्वियसली हमने प्रीवियस स्लाइड यहाँ पे चलते हैं, तो अब इस प्रीवियस स्लाइड में देखो, अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है इस सीट का, दैट इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज ए नॉट, ओरिजिनल हाइट और हाइट ऑफ द प्लेट बिफोर डिफॉर्मेशन, एंड दिस हैच्ड पोर्शन इज नथिंग बट it is considered as AF, that is final area after deformation, yes or no, करेक्ट है। तो इस तरीके से इन एरिया को हम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखूं तो क्या है दोस्तों, ए नॉट इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज एच नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे आप ए एफ लिखो फाइनल एरिया, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं एच एफ इंटू डब्ल्यू एफ, yes or no, फाइनल विड्थ, ऑल्दो इनिशियल एंड फाइनल विड्थ इज रिमेन सेम, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, yes or no, करेक्ट है। तो सिंपली यहाँ पे जो आएगा एच नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट, दिस इज इनिशियल एरिया, एंड ए एफ इक्वल टू एच एफ इंटू डब्ल्यू एफ, करेक्ट। और अगर इसमें आप इनकी वैल्यू पुट करोगे दोस्तों इस ए नॉट माइनस ए एफ बाई ए नॉट में, तो सिंपल सा जो आपको यहाँ पे रिलेशन मिलने वाला है विच इज इक्वल टू दिस रिलेशन, यस आर नो, करेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइट में रिडक्शन होगा वही सेम रिडक्शन एरिया में होगा, करेक्ट। और इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर, एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एनालिसिस ऑफ फ्लैट रोलिंग का। तो एज वी नो दैट दिस v1 इज नथिंग बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल बिफोर एंटरिंग, यस आर नो, दिस इज द एंट्री पॉइंट, इज इट क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर शो करता हूँ, यू कैन सी ये जो रेड कलर से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, दिस इज एंट्री पॉइंट, जहां से मटेरियल जस्ट रोलर के अंदर एंटर होने वाला है, दिस इज एंट्री पॉइंट। एंड यू कैन सी हियर दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एग्जिट पॉइंट, जहां से मटेरियल जस्ट रोलर जहां पे कंप्रेस हो रहा है, मटेरियल कंप्रेस हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, उस एंड से एग्जिट होने वाला है, करेक्ट है। ये एग्जिट एंड है एंड दिस इज एंट्री, करेक्ट। तो सिंपली आप कह सकते हो v1 इज नथिंग बट दिस इज एंट्री वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल एट एंट्री, करेक्ट। यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन में जब मटेरियल एंटर कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी, मटेरियल ये जो प्लेट फ्लो हो रहा है इस प्लेट की वेलोसिटी v1 है, और यहां से जहां से एग्जिट हो रहा है यहाँ पे इसके इसी सेम मटेरियल की वेलोसिटी v2 होगी, एंड बोथ वेलोसिटीज आर डिफरेंट, इज इट क्लियर? और ये वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होगा दोस्तों? तो सिंपल से देखो, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी अप्लाई कर दूं बिटवीन एंट्री, अगर मैं इस एंट्री को 1 से डिनोट करूं और इस एग्जिट को 2 से डिनोट करूं, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं बिटवीन 1 एंड 2, करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी, क्योंकि वॉल्यूम थ्रू आउट द डिफॉर्मेशन सेम होने वाला है, कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या आएगा दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज v1 वॉल्यूम फ्लो रेट, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम फ्लो रेट, यस और नो,
तो V1 इंटू, यहाँ पे चलो मैं लिख ही देता हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज हियर आई एम गोइंग टू राइट वॉल्यूम फ्लो रेट, या सिंपली वी कैन से फ्लो रेट ऑफ मटेरियल, करेक्ट। तो ये फ्लो रेट क्या होगा दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज V1 इंटू एरिया एट द एंट्री दैट इज ए नॉट। यहाँ पे क्या होगा, जो इस एंट्री पे वन पॉइंट पे जो एरिया है वही सेम एरिया इधर होगा दोस्तों, सेम, ये सानो, क्योंकि स्टिल अभी तक यहाँ पे मटेरियल डिफॉर्म नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ओरिजिनल एरिया। एंड V2 क्या है, दिस इज फाइनल एरिया जहाँ पे मटेरियल कंप्लीटली डिफॉर्म हो चुका है, अपने फाइनल स्टेज में आ चुका है। तो V2 इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2, यस यस A2, करेक्ट है, या AF लिख सकते हो आप, करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक समझ में आ गया। और ए नॉट की जगह चलो मैं इसे 1 से डिनोट कर देता हूँ, एरिया एट पॉइंट 1, इज इट क्लियर। और ऑल दो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि A1 जो होगा, ए नॉट इज इक्वल टू A1 होगा, ये सानो दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगा, बिकॉज बिफोर एंट्री और एट द एंट्री देयर इज नो डिफॉर्मेशन, यहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है, करेक्ट है दोस्तों। तो नेक्स्ट यू कैन सी, इंस्टेड ऑफ A1 हियर वी कैन राइट H1 इंटू W, और W में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज विड्थ एट बोथ द सेक्शन इज रिमेन सेम। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, V2 इंटू H2 इंटू W, ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल से आप यहाँ पे देखो V1 इंटू H1 इज इक्वल टू V2 इंटू H2, ये हमारे पास रिलेशन मिला है, yes or no। तो नाउ यू कैन सी हियर, एज वी नो दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, एज वी नो दैट H2 इज, यहाँ पे क्या होगा, H2 इज लेस देन H1, ये सार नो, करेक्ट। फाइनल हाइट जो है इनिशियल हाइट से कम है, ये सानो। और अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, तो सिंपली आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, H2 इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे V1 H1 इज इक्वल टू V2 H2 है, ऐसा नो, V1 H1 is equal to V2 H2। As we know that H2 is less than H1, H2 is less than H1, तो दोनों क्वांटिटी फिर इक्वेट कैसे होंगे, तो दोस्तों अल्टीमेटली V2 को ग्रेटर देन होना पड़ेगा V1 से, ये सानो। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल एट द एग्जिट, velocity of the material at the exit is greater than the velocity of the material at entry, yes or no, V2 is greater than V1। तो दोस्तों आई थिंक ये समझ में आ गया कैसे ये वेलोसिटी हमने लिखा कि एंट्री पे वेलोसिटी एग्जिट वेलोसिटी से कम होगी, yes or no। एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। हेलो, ये एनालिसिस समझ में आया, व्हाई वी कैन राइट दिस थिंग V2 is greater than V1, एनीवन। yes निखिल, V2 is greater than V1। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट दोस्तों। Okay, so now you can see here, between entry and exit there is a section called neutral section। अगर मैं इस neutral section की बात करूं, then you can see here, once again you can see this figure। काफी ज्यादा जूम हो गया, इसको मैं जूम आउट करता हूं दोस्तों। ओके, once again, सर V2 के V1 से ग्रेटर होने की वजह से मटेरियल क्या हीट होगा, चेंज इन एनर्जी। चलो मैं इसका आंसर देता हूं निखिल। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप मटेरियल को डिफॉर्म करोगे,
तो मटेरियल को डिफॉर्म करने से क्या होता है, वहां पे स्लिप फिनोमिना होता है। मटेरियल में क्या होता है, आपस में जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वो स्लिप करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस सम फ्रिक्शन ऑकर्स एंड दिस फ्रिक्शन कॉजेस हीट। यस और नो? तो जब भी मेटल को आप डिफॉर्म करोगे, चाहे वो रोलिंग हो चाहे एनी मीन, आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, एक वायर लो और उस वायर को बेंड और अनबेंड करो फ्रिक्वेंटली, करेक्ट है? तो करीब 4-5 बार जब आप उसको बेंड अनबेंड करोगे तो आप देखोगे कि उस वायर का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा जहां पे आप डिफॉर्म कर रहे हो। तो सिर्फ उसका एकमात्र रीजन है मेटल का डिफॉर्म होना, करेक्ट है? मेटल का डिफॉर्म होना, जब भी मेटल डिफॉर्म होगा तो हीट कुछ ना कुछ लिबरेट होगी, ये नो? करेक्ट है? क्लियर है? और ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि चूंकि आप उसको बेंड या डिफॉर्म करने के लिए आप कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में आपको अदर मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में मिल जाती है, सामनो? करेक्ट? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो वेलोसिटी है एंट्री एंड एग्जिट, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि v1 इज लेस देन v2। लेकिन अगर मैं इस रोलर की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रोलर, करेक्ट है? तो दिस रोलर कैन ऑल्सो रोटेट विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, करेक्ट है? और अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, करेक्ट, लाइक दिस, तो दोस्तों ये क्या करेगा, दिस रिप्रेजेंट सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रोलर। इज इट क्लियर? वीआर को मैं सिंपली लिख सकता हूं, दिस वीआर इज नथिंग बट दिस इज सरफेस वेलोसिटी, सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर। यस आर नो? करेक्ट? तो सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर, तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों वेलोसिटीज में एक रिलेशन लिखूं, v1, vr एंड v2, इन तीनों वेलोसिटी के बीच में अगर हम एक रिलेशन देखें, करेक्ट है, तो दोस्तों होगा क्या, एक तो रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है कि v1 इज लेस देन v2, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन इस vr के साथ क्या इनका रिलेशन होगा, तो दोस्तों याद रखना, ये आप इसको याद रखना कि अगर मैं इन तीनों वेलोसिटीज के रिलेशंस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा कि जो v2 है दिस इज ग्रेटर देन vr एंड दिस इज ग्रेटर देन v1। आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक रिजल्ट मिलने वाला है। इज इट क्लियर? v2 is greater than vr is greater than v1 मीन्स जो रोलर की सरफेस वेलोसिटी है, इट ऑलवेज लाई ऑन इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल फ्लो। यस आर नो? करेक्ट है? इन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल फ्लो। और क्यों ऐसा होगा, बिकॉज इसी रोलर के स्पीड की वजह से ही, इस रोलर के रोटेशन की वजह से ही यहाँ पे मटेरियल एंटर कर रहा है और फ्लो हो रहा है। ये सारनो, तो ऑब्वियसली इस रोलर की स्पीड की वजह से ही मटेरियल फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनका जो वेलोसिटी होगा वो इन बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट ही लाइक करने वाला है। ये सारनो? करेक्ट है? अब क्वेश्चन आता है कि इन अगर मैं यहाँ पे इन वेलोसिटीज को और डिटेल से देखूं, तो दोस्तों इन केस ऑफ रोलिंग प्रोसेस एंड स्पेशली इन द डिफॉर्मेशन जोन, हियर वी कैन गेट टू रीजन्स। यस आर नो? टू रीजन्स। कौन कौन से रीजन मिलेंगे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे रीजन शो किया है और एक यहाँ पे येलो कलर का रीजन शो किया है, करेक्ट है? और इन बिटवीन यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, करेक्ट है दोस्तों? ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट दिस इंडिकेट्स एट, या कह सकते हैं हम करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, और सिंपली वी कैन से प्लेन, इससे पास होने वाला एक प्लेन होगा, करेक्ट है? तो इस प्लेन को हम कहते हैं न्यूट्रल प्लेन। क्या कहेंगे दोस्तों हम? दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल प्लेन। इज इट क्लियर? और न्यूट्रल प्लेन क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जिसके ठीक पहले, मतलब इन दिस रीजन हियर द वेलोसिटी ऑफ द रोलर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल एंड, और येलो कलर जोन में जो ये रीजन है, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर देन रोलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? करेक्ट है? तो आई थिंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ द रोलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन material velocity, and in case of yellow zone you can see here the velocity of the material is always greater than velocity of the roller। yes or no? तो अब आप मुझे बताओ कि कभी ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी डायरेक्ट जंप कर जाए, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ग्रेजुअली डिक्रीज होगा? yes or no? तो हमें इन रीजन्स में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलने वाला है, एक ऐसा रीजन जरूर मिलेगा जहां पे रोलर की वेलोसिटी
और मटेरियल की वेलोसिटी दोनों ही सेम हो जाए, और उसी रीजन को, उसी प्लेन को हम कहते हैं दोस्तों न्यूट्रल प्लेन। इज इट क्लियर? सो सिंपली यू कैन से न्यूट्रल प्लेन इज अ प्लेन at which the velocity of the roller is equal to velocity of the material flow. करेक्ट? मटेरियल फ्लो की वेलोसिटी रोलर की वेलोसिटी से इक्वल हो जाता है, और इस रीजन को, या सिंपली हम कह सकते हो वी आर इज इक्वल टू, एट दिस रीजन वी आर इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू। मतलब जो मटेरियल फ्लो हो रहा है उस मटेरियल फ्लो की वेलोसिटी रोलर की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ये सानो। और जब भी ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो सिंपली हम इस पॉइंट को कह देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ये सानो। करेक्ट है? एंड एट न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आपको कोई स्लिप नहीं मिलने वाला। करेक्ट है? क्योंकि स्लिप वहीं पे जीरो हो सकता है जहां पे दोस्तों क्या होगा, जहां पे वेलोसिटी इक्वल हो जाए, यस और नो, सरफेस वेलोसिटी इक्वल हो जाए, वहीं पे स्लिप, नो स्लिप कंडीशन मिलने वाली है, यस और नो। करेक्ट है? तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि एट न्यूट्रल प्लेन, यहाँ इवन इट में भी यहाँ पे लिखा हो, या मैं चलो यहाँ पे बता देता हूं, at neutral plane, at neutral plane velocity of the rolls is equal to velocity of the material, therefore it is also called as, no slip region, नो स्लिप रीजन, और नो स्लिप प्लेन, नो स्लिप प्लेन ही लिख देता हूं। करेक्ट है दोस्तों? नो स्लिप प्लेन मतलब देखो सिंपल से इसका एग्जांपल बताता हूं। आपके पास सपोज एक व्हील है, और अगर मैं इस व्हील को इस सरफेस के ऊपर रोल करूं, करेक्ट है दोस्तों, रोल किया जाए, और इस तरीके से रोल किया जाए कि इस पॉइंट पे क्या हो, यहाँ पे कोई स्लिप ना हो। करेक्ट? या सिंपली आप कह सकते हो कि अगर आपका कुछ इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, तो इसका रोटेशन, करेक्ट है, इसका रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, करेक्ट, या ये कह सकते हैं हम, दिस इज इन रोटेशन ऑफ द व्हील अगेंस्ट द सरफेस, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट है, रोटेशन ऑफ द सरफेस अगेंस्ट द व्हील, है ना, वाइस वर्सा कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, करेक्ट है, जहां तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो स्लिप, यस और नो। या इसका और चलो एक और बेहतर मैं एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पे आप व्हील है, करेक्ट, आप इसको रोटेट करो, और एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दो इस व्हील में, करेक्ट है। अब आप इसको रोटेट करोगे दोस्तों, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका अगर हम इसको ट्रेस करें तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये सारनो, अलोंग दिस लाइन जिसके ऊपर ये रिवॉल्व हो रहा है, करेक्ट है, करेक्ट। तो ये पॉइंट ऐसे मार्क होंगे दोस्तों कि ये कुछ इस तरीके से हम इसको रोटेट करेंगे कि इस व्हील का इस सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई भी स्लिपिंग ना होने पाए। करेक्ट है? स्लिपिंग ना होने का मतलब देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। इज इट क्लियर? जब भी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा तो वहां पे स्लिप आ ही जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो सिंपली हम कह सकते हैं देयर इज नो स्लिप। इज इट क्लियर? बट सिंस यहाँ पे इस न्यूट्रल प्लेन में आपको ये कंडीशन मिल रही है, लेकिन बिफोर न्यूट्रल प्लेन हियर वी हैव different velocities, roller velocity and material velocities are different, and because of different velocities here we can get slip, yes or no। तो दोस्तों इस न्यूट्रल प्लेन के बैक साइड जो स्लिप होता है, करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड स्लिप, और इस न्यूट्रल प्लेन के राइट साइड जो स्लिप होगा दैट वन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्लिप। और इस स्लिप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी विद दिस रिलेशन, बैकवर्ड स्लिप, करेक्ट, आई थिंक समझ में आ गया। बैकवर्ड स्लिप क्यों हुआ, न्यूट्रल प्लेन के बैक साइड अगर स्लिप है तो उसे कहेंगे हम बैकवर्ड स्लिप, और फॉरवर्ड राइट साइड में अगर स्लिप है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड स्लिप। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस रिलेशन वी आर माइनस वी वन अपॉन वी आर, वेयर वी आर इज अ रोलर सरफेस वेलोसिटी एंड वी वन इज अ मटेरियल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम स्लिप पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट का स्लिप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो। एंड सिमिलरली फॉरवर्ड स्लिप की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, v2 minus vr upon vr, and again the region behind this slip is different in velocities, yes or no। अगर सेम वेलोसिटी होती है तो यहाँ पे कोई भी स्लिप कंडीशन नहीं आती। करेक्ट है दोस्तों? एंड नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो ब्लू रीजन है जहां पे बैकवर्ड स्लिप हो रहा है, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग जोन,
और नेक्स्ट जो आपको येलो रीजन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग जोन। करेक्ट है, लैगिंग जोन एंड लीडिंग जोन, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि मटेरियल एंटर कैसे होगा ऑटोमेटिकली। यहां से आप कोई पुश नहीं अप्लाई कर रहे हो, मटेरियल ऑटोमेटिकली एंटर हो रहा है। तो देखो न्यूट्रल प्लेन के ठीक पहले, न्यूट्रल प्लेन के ठीक राइट लेफ्ट साइड रोलर की वेलोसिटी मटेरियल की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो ओवरऑल आप जब देखोगे, एक यहाँ पे मैं आपको एक फ्रेश पेज लेके बताता हूँ, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। सपोज दिस इज योर रोलर, इज इट क्लियर, एंड दिस इज योर मटेरियल जो कि डिफॉर्म हो रहा है, ऐसा नो। तो इस रीजन की हम बात करें दोस्तों, करेक्ट, इस रीजन की, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं अगर सेपरेट करूं, देखो कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अगर हम इसका फ्री डायग्राम ड्रॉ करें, तो अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करूं, तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सानो। एंड दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज वी आर, वेलोसिटी ऑफ द रोलर। और इस डायरेक्शन में आपको एक वेलोसिटी मिल रहा है v1, करेक्ट। और ये v1 क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, करेक्ट है। स्पेशली यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये न्यूट्रल न्यूट्रल प्लेन को हम यहाँ पे शो करें, तो इस रीजन में, करेक्ट, इस रीजन में देखोगे जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है दोस्तों, दैट वन इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज हियर द रोलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन surface velocity of the material. But when we talk about this leading zone, in this region actually, यहाँ पे मटेरियल की वेलोसिटी क्या होगा, रोलर की वेलोसिटी से कम है। तो नेट जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये सर नो, करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा, जबकि इस रीजन में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट फ्रिक्शनल, या फिर से मैं इसको बताता हूँ, 2 सेकेंड और बड़ा फिगर ड्रॉ करता हूँ। आई थिंक इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। यहाँ पे देखो, ओहो, लाइक दिस, करेक्ट। और ये न्यूट्रल प्लेन है, करेक्ट है दोस्तों। तो इस रीजन में आप देखोगे कि जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फ्रिक्शनल फोर्स। एंड क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज ऑफ वी आर इज ग्रेटर देन v1, इसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। जबकि अगर मैं इस रीजन में बात करूं, करेक्ट है, इस न्यूट्रल प्लेन के राइट साइड, तो इस रीजन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हियर द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर देन रोलर वेलोसिटी, करेक्ट है। तो रोलर इटसेल्फ ये इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है मटेरियल को फ्लो करने के लिए, ये सानो, करेक्ट। तो इससे क्या पता चला दोस्तों कि जो मटेरियल का एंट्री हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, करेक्ट है। ये यहाँ पे ये इसको अपोज कर रहा है, करेक्ट। तो अपोजिशन अगर कम से कम हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ये जो न्यूट्रल प्लेन है, इट शुड बी लाइक ऑन इन द राइट साइड, ये नो, एग्जिट के नियर बाई होना चाहिए। क्योंकि अगर एंट्री साइड हो गया तो ये मेटल को एंटर ही नहीं करने देगा। इज इट क्लियर? करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, उसका इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से होगा। इन द इन द फर्स्ट रीजन, at the entry region, the material velocity is lower than the roller velocity, and because of this the material can enter, or frictional net frictional force act towards the right, which is trying to enter the material in between the rollers, yes or no? Is that clear? चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये स्लिप के बारे में बात हो गई। चलो इसी एक्सप्लेनेशन को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सेल्फ एंट्री कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं, या मैक्सिमम रिडक्शन क्या पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी हियर, सपोज इफ आई कंसीडर अ पॉइंट हियर, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करूं लाइक दिस, यहाँ पे दोस्तों अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें, करेक्ट है, और ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज लाई ऑन जस्ट बिहाइंड द न्यूट्रल प्लेन। यस यस निखिल,
यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो इस न्यूट्रल प्लेन के राइट साइड यहाँ पे जो फोर्स होगा, नेट फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा और इस रीजन में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और सपोज मैं इसे कह दूं FF1 और इसे कह दूं मैं FF2, करेक्ट है। तो FF1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन FF2। अगर ऐसी कंडीशन है तभी आपका मटेरियल एंटर हो पाएगा, अदरवाइज एंटर नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? नेट जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, देन योर मटेरियल कैन एंटर, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? करेक्ट। अब चलो यहाँ पे सेल्फ एंट्री कंडीशन ही पता करना है, किस कंडीशन में मटेरियल ऑटोमेटिकली एंटर करेगा विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। करेक्ट। तो सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, यू कैन सी हियर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप दोस्तों देखो, ये जो रोलर है इट कैन अप्लाई अ फोर्स अलोंग द रेडियल डायरेक्शन लाइक दिस। करेक्ट। इस डायरेक्शन में एक प्रेशर अप्लाई करेगा। यस और नो? बोलो। और सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज फोर्स P, और यहाँ पे फोर्स P क्या होगा दोस्तों? फोर्स P इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रोलर इनटू एरिया जहां पे ये एक्ट हो रहा है। ये सानो करेक्ट है। और ये ऑब्वियसली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो देखो ये क्या होगा, दिस इज अ रेडियल फोर्स। करेक्ट। इसको अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं दोस्तों तो सिंपली आप कह सकते हो दिस इज नथिंग बट दिस इज रेडियल फोर्स। ये सानो लाइक दिस। इज इट क्लियर? ओके। नाउ here we need to find out the direction of frictional force. yes or no? करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, यू कैन से हियर दिस रोलर कैन रोटेट along this direction. yes or no? This roller can rotate along this direction. Is it clear? Now tell me what is the direction of friction force at this point? Anyone? Either towards the right or towards the left. यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो, ये आप ऑलरेडी आपको पता होगा, ये एक बॉक्स है एंड सपोज दिस बॉक्स इज प्लेस्ड ओवर द सरफेस। इस सरफेस के ऊपर रख दिया हमने। नाउ इफ यू ट्राई टू पुल दिस बॉक्स अलोंग दिस डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स F। करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? ऑब्वियसली दिस फ्रिक्शनल फोर्स में एक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। ये सार नो? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, कौन ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं इसको और ज्यादा एलिबरेटेड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज नथिंग बट दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं इस सरफेस को 1 कह दूं एंड इस बॉक्स को 2 कह दूं, करेक्ट है, तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉक्स। ये सानो? तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1-2, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन द बॉक्स FSB। ये सानो? करेक्ट है। बट अगर मैं कहूं कि हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय बॉक्स ऑन द सरफेस, करेक्ट, हमें क्या पता करना है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय बॉक्स ऑन द सरफेस। तो ये क्या होगा? करेक्ट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स? तो ऑब्वियसली दोस्तों क्या होगा, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय सरफेस ऑन द बॉक्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय बॉक्स ऑन द सरफेस। यस और नो? इट मींस, अब इसका मीनिंग क्या है? अब आप सब बोलोगे सर दोनों साइड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो गया तो इस फोर्स का तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये दोनों फोर्स डिफरेंट एक्ट होंगे। करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मैं इसका फ्री वर्ड डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यू कैन सी, ये हो गया बॉक्स और ये हो गया सरफेस। यस और नो? करेक्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स F। अब ये इस बॉक्स में फोर्स अप्लाई करना है, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय सरफेस ऑन द बॉक्स। तो ऑब्वियसली दिस फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। यस और नो? बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पे देखो वन मोर थिंग, इस फोर्स का रिएक्शन कहां पे एक्ट होगा इस सरफेस में? अगर हम देखें तो दिस रिएक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? करेक्ट है, इस डायरेक्शन में कह सकते हैं। करेक्ट। और दूसरा में अगर हम बात करें कि इस फोर्स का अपोजिट, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय बॉक्स ऑन द सरफेस, तो कुछ इस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? यस और नो?
तो इस सरफेस में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है अप्लाइड बाय बॉक्स, कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और इस बॉक्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो इस तरीके से एक्ट होगा। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं, बता दो पहले मुझे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर अदरवाइज फिर आगे नहीं समझ में आने वाला। करेक्ट है। तो मुझे फटाफट यहाँ पे बताओ निखिल, अभिनव, एनीवन, यहाँ पे अगर कोई डाउट होता मुझे बता दो फटाफट। सौम्य रंजन, हेलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो चलिए मैं अब इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो सिंपली आप देखो कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रोलर, इज इट क्लियर? तो रोलर में ऑब्वियसली इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एंड एज वी नो दैट फ्रिक्शन फोर्स, यस, रोलर से मटेरियल पे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आपने डायरेक्ट रिजल्ट पे आ गया, नो प्रॉब्लम। देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑफ द रोलर, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली हमेशा एक्ट होगा अपोजिट टू दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट एक्ट होता है वेलोसिटी के, ये आर नो? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? लाइक दिस। बट ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय प्लेट ऑन द रोलर। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय प्लेट ऑन द रोलर। बट हियर वी आर इंटरेस्टेड इन मटेरियल, यस आर नो? हमें मटेरियल पे इंटरेस्ट है, ना कि रोलर पे। तो अगर मैं इस मटेरियल पे ड्रॉ करूं तो क्या होगा दोस्तों? इस फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय रोलर, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय रोलर ऑन द सरफेस, यस आर नो? कुछ इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? एनीवन, हेलो? तो सिंपल से यहाँ पे दोस्तों हमें रिजल्ट मिल गया कि फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यस आर नो? करेक्ट। दिस इज एफ एफ। अब मैं इसे सिंपल सा एफ एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप लोग को आई थिंक डाउट नहीं होगा, करेक्ट है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें फोर्स के दोनों पता चल गए। ये आपका कौन सा है? दिस इज रिएक्शन, दिस इज फोर्स ऑफर्ड, फोर्स अप्लाइड बाय रोलर एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, या सिंपली हम कह सकते हो ये नॉर्मल है। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, बोलो? और अगर मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स को लिखूं यहाँ पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स आप क्या लिख सकते हो? इट इज सिंपली रिटन एज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे? ये जो पी फोर्स एक्ट हो रहा है इटसेल्फ, यस आर नो? तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू पी लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? यस आर नो? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको और ज्यादा इलेबरेट करें तो सिंपली इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, यस आर नो? इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों, तो सिंपल से आप मुझे कह सकते हो ना, दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, यस आर नो? दिस एंगल इज कॉल्ड एज अल्फा, यस आर नो? एंड नाउ इफ यू कैन रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग दिस डायरेक्शन, मुझे इन फोर्सेस में इंटरेस्ट है, यस आर नो? करेक्ट। इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं दोस्तों, तो देखो कैसे एक्ट होगा। तो सिंपल सा आप देखो यहाँ पे, इफ दिस एंगल इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, करेक्ट, देन इस P का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? इट इज सिंपली रिटन एज P साइन अल्फा, ये सानो ऐसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली यू कैन सी हियर, इफ दिस एंगल इज अल्फा, देन this one must be written as 90 minus alpha, yes or no? Because this is perpendicular, P is perpendicular to FF, तो ये 90 minus alpha होगा। and if it is 90 minus alpha, then you can see this angle can be written as alpha, yes or no? तो आप मुझे बताओ ये समझ में आया कैसे अल्फा लिख दिया हमने? हेलो? करेक्ट है। और जैसे अल्फा मिल गया तो ये जो कंपोनेंट आपको मिलने वाला है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट इट कैन बी सिंपली रिटन एज एफ एफ कॉस अल्फा, यस आर नो? एफ एफ कॉस अल्फा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इन दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिजोल्व करने में कोई प्रॉब्लम है
यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बता दो फटाफट। और दोनों के जो साइन, दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोस्तों, चाहे मैं पी का वर्टिकल कंपोनेंट लिखूं या एफ एफ का, बोथ आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस आर नो, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, यस आर नो। और इस डाउनवर्ड फोर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज दिस डाउनवर्ड फोर्स डजंट causes for any material entry, yes or no, करेक्ट है। देखो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्दो ये थ्रू आउट द रीजन की बात होगी, करेक्ट है। इस ए से सी के बीच में नेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा जो इसको एंटर कराएगा, करेक्ट है दोस्तों। और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि दिस न्यूट्रल प्लेन इज लाई ऑन नियर टू दिस एग्जिट रीजन, ये सारो इसके नियर बाई है, करेक्ट है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस होल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल एंट्री, करेक्ट है। और जब होल रीजन रिस्पॉन्सिबल है तो नेट एंगल यहाँ पे अल्फा है, इसी को हम कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये सार नो। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे अल्फा यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इज इट क्लियर, करेक्ट है, बोलो। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर सेल्फ एंट्री कंडीशन, फॉर सेल्फ एंट्री कंडीशन, सेल्फ एंट्री कंडीशन यहां पे क्या होगा दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज एफ एफ cos alpha must be greater than or equal to p sin alpha, then your material can enter for the deformation। अगर ऐसी कंडीशन है तभी होगा ये पॉसिबल, ये सार नो, ये सार नो। नेट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इट मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, ये सार नो, देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इज इट क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता दोस्तों। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा दोस्तों, एफ एफ डिवाइडेड बाई पी, यस आर नो। और इसे मैं और सिंप्लीफाई करूं तो दोस्तों क्या आएगा, एफ एफ इज नथिंग बट दिस इज म्यू टाइम्स ऑफ पी डिवाइडेड बाई पी, तो ये पी से पी कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल से यहां से रिजल्ट मिल गया कि tan अल्फा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू, यस आर नो, करेक्ट है। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया कि नहीं दोस्तों, हेलो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे कह दूं दिस इज O1, तो यहाँ पे आप दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो, लाइक दिस राइट एंगल ट्रायंगल, एनीवन, दिस इज O1, this is B and this is A, and this angle is alpha, correct, and this is nothing but this is R minus delta H by 2 and this is R, correct। तो यहां से निखिल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। पहले इसको देख कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, करेक्ट। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे tan अल्फा कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ए बी जो है दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ, यस आर नो, इसे मैं प्रोजेक्टेड लेंथ लिख सकता हूँ। तो सिंपली कह सकते हो फ्रॉम दिस ट्राइंगल tan अल्फा कैन बी रिटन एज, tan अल्फा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एलपी अपॉन बेस, क्या है यहाँ पे आर माइनस डेल्टा एच बाई टू, यस आर नो, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, LP, this LP is nothing but it can be simply written as root of R delta H divided by R minus delta H by 2, yes or no, करेक्ट। इसे और सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट को अगर मैं बाहर ले लूं दोस्तों तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आएगा, R इंटू डेल्टा एच, तो ये एज इट इज आएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की हम बात करें तो दोस्तों इसका मैं स्क्वायर करके रूट अप्लाई कर सकता हूं, तो R माइनस डेल्टा एच बाई टू का होल स्क्वायर, यस आर नो, करेक्ट है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों, बोलो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो tan अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर मैं स्क्वायर को ब्रेक कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर डेल्टा एच बाई 2 प्लस डेल्टा एच बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से रिजल्ट आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आर स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी, एंड एज कंपेयर टू दिस quantity is very small, that's why it is considered as zero, and this one is also very small, that's why it is considered as zero। करेक्ट है, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होगा, रेडियस इज अ वेरी हाई, 200 मिलीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 200 इंटू 0.1 तो 20। करेक्ट। तो दोस्तों 40,000 में अगर 20 हम ऐड या सब्सट्रैक्ट ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्मॉल क्वांटिटी होने की वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब रिजल्ट आएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यस आर नो, और इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा रिजल्ट मिल जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एच बाई आर। करेक्ट, ये रिजल्ट मिल गया। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, ओके नो इशू, मैं फिर से इसको लिख देता हूं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही मूव कर लेते हैं। ओके हियर, यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि क्या है हमारे पास रिजल्ट, टेन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, टेन अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एच बाई आर, ये रिजल्ट आ गया। एंड सपोज वी कैन से दिस इज इक्वेशन 2, तो सिंपल से क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों में क्या रिजल्ट है, टेन अल्फा, यहाँ पे देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, टेन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। करेक्ट, tan alpha is less than equal to mu, करेक्ट, और इंस्टेड ऑफ tan alpha we can write this term, तो क्या आएगा दोस्तों, डेल्टा एच बाई आर स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू म्यू, या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर, यस आर नो। यहां से रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी म्यू स्क्वायर इनटू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच। अब इस छोटे से रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा दोस्तों। करेक्ट है, और क्या क्या आंसर है देखो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट अ गिवन रेडियस एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाउ मच मैक्सिमम रिडक्शन इज पॉसिबल। करेक्ट है, या फॉर अ गिवन रिडक्शन हाउ मच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, ये सानो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। करेक्ट है दोस्तों, तो याद रखना, एज वी हैव हाइयर म्यू वी कैन गेट हाइयर डेल्टा एच, ज्यादा रिडक्शन पॉसिबल है। सिमिलरली एज वी हैव हाइयर रेडियस, अगर रोलर का रेडियस जितना ज्यादा होगा डेल्टा एच क्या मिलने वाला दोस्तों, ऑब्वियसली हाइयर मिलने वाला, ये सानो। करेक्ट है, तो डेल्टा एच कैसे हम बढ़ा सकते हैं, रिडक्शन कैसे पॉसिबल है बढ़ाना, बाय इंक्रीजिंग इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बाय इंक्रीजिंग द रेडियस, यस और नो। यही दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम हाइट में रिडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यस और नो। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे किसी कोई डाउट है क्या, एनीवन, हेलो। चलो अब यहाँ पे एक डाउट ले लेते हैं, निखिल का एक डाउट था कि ए टू सी रीजन में स्ट्रेस कैसे एक्ट होगा, प्लीज टेल। इसमें क्रॉस सेक्शन ए टू सी रीजन होगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस एंड पी लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होगा, यस करेक्ट है।
दोनों ही सुटेबल है, इट डिपेंड्स कि आप कौन से मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हो। करेक्ट है। देखो करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे। करेक्ट है। एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट दिस इज ऑफर्ड बाय द रोलर। करेक्ट। तो जब भी हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच रोलर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मटेरियल। इज इट क्लियर? रोलर प्रेशर हमें क्या लगाना पड़ेगा जिससे मटेरियल को डिफॉर्म कर सकें। करेक्ट है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सिंपल ये मटेरियल है, इसकी आपको पता है कि एस वाई टी वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली दिस लोड और दिस स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू दिस लोड मस्ट बी ग्रेटर देन दिस एस वाई टी। तो अगर आपको पता है कि सपोज यू नीड टू डिफॉर्म दिस मटेरियल फ्रॉम एच नॉट टू एच एफ, अगर इस तरीके से आपको हाइट में रिडक्शन करना हो तो इस रिडक्शन के लिए गिवन मटेरियल में हमें क्या लोड अप्लाई करने पड़ेगा, एक्चुअली हमें इसे पता करना होता है। करेक्ट है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट स्ट्रेसेस। इज इट क्लियर? ऑल्दो दिस फोर्स कैन बी डिटरमिन ओनली बाय डिटरमिन हाउ मच स्ट्रेसेस इंड्यूस, यस आर नो, और इसके लिए कंप्लीट डेरिवेशन होता है दोस्तों। करेक्ट है। तो ऑब्वियसली आपने कहा कि इस सरफेस के पैरेलली जो स्ट्रेस एक्ट होगा दिस वन इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस। करेक्ट है। और जिसे हम शियर स्ट्रेस कहेंगे टाउ, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एरिया। और एरिया क्या होगा दोस्तों? इसका प्रोजेक्टेड एरिया हम हमेशा कंसीडर करते हैं। करेक्ट है। तो प्रोजेक्टेड क्या होगा? प्रोजेक्टेड लेंथ एलपी। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। करेक्ट। जो शियर स्ट्रेस एक्ट होगा और इसे क्या कहेंगे हम? फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस। करेक्ट। और ये होगा हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया होगा दोस्तों एलपी इंटू विड्थ। करेक्ट। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इसी के नॉर्मल यहाँ पे जो एक्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। और ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा क्या होगा? ऑब्वियसली फोर्स पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? एलपी इंटू डब्ल्यू। यस आर नो? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेसेस की इक्वेशंस होंगी। करेक्ट है। तो निखिल समझ में आ गया क्या? हेलो हेलो, एनीवन? चलो अब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसे देखते हैं। करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रोलिंग प्रोसेस द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज रिड्यूस्ड। The thickness is reduced from 4 mm to 3 mm using 300 millimeter diameter rolls which is rotating at 100 rpm. Velocity of the strip at the neutral point. करेक्ट है। यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हो क्या? क्या आएगा आंसर? कैसे सॉल्व करेंगे हम? और आपको यहाँ पे गिवन क्या है? एच नॉट इज इक्वल टू 4 mm, एच एफ इज गिवन दैट इज इक्वल टू 3 mm। करेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों जो रोलर है उसका डायमीटर है दिस इज 300 मिलीमीटर। Diameter of the roller is 300 mm and rollers can rotate with speed n is equal to 100 rpm। 100 rpm से रोटेट हो रहा है। The velocity of the strip in meter per second। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप मतलब वी आर आपसे पूछा जा रहा है। वी आर कहाँ पे? एट न्यूट्रल पॉइंट। ऑब्वियसली हम सिंपली कह सकते हैं कि दिस वेलोसिटी इज नथिंग। नहीं बालक, ये डायरेक्टली आप यहाँ पे मैंने लिख तो दिया बट डायरेक्टली ऐसा नहीं पता करते हम। करेक्ट है। यहाँ पे देखो होता क्या एक्चुअली, यहाँ पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट है। हर जगह पे आपको डिफरेंट फोर्स डिफरेंट प्रेशर मिलने वाला है। करेक्ट है। डिफरेंट प्रेशर मिलेगा तो आप डायरेक्टली कभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आपको पी पता करना है और इस पी को पता करने के लिए आपको चाहिए मीन प्रेशर क्या एक्ट हो रहा है। करेक्ट है। मीन प्रेशर इनटू एरिया। करेक्ट।
और इस मीन प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए कंप्लीट डेरिवेशन होता है। करेक्ट है, काफी बड़ा डेरिवेशन होता है जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, वो आपके काम का नहीं है। करेक्ट है, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस होता है, कंप्लीट डेरिवेशन होता है। करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो ये इस मीन प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए स्लैब मेथड है, से काफी बड़ा डेरिवेशन हम परफॉर्म करते हैं, तब जाके हमें इसका रिजल्ट मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल सा कि आपने फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया और आपको स्ट्रेस मिल गया, है ना। इतना इजीली यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। करेक्ट। तो चलो इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस, उसके बाद देखते हैं। करेक्ट। तो चलो यहाँ पे ये कि हमने लिख दिया कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और मटेरियल की वेलोसिटी पता करना है। और चूंकि न्यूट्रल पॉइंट पे पता करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप पता करना। एक्चुअली दिस इज नॉट, यहाँ पे हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप एट ए न्यूट्रल पॉइंट। और ऑब्वियसली न्यूट्रल पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रोल्स के इक्वल होगा। करेक्ट है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और वेलोसिटी ऑफ रोल्स क्या होगा, ओके प्रतीक, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। वेलोसिटी ऑफ रोल होगा दोस्तों, क्या होगा, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं पाई डी एन बाई 60। ये सानो डायरेक्टली लिख सकता हूँ पाई डी एन बाई 60, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रोल। सपोज आपके पास एक ऐसा रोलर है जो कि एन स्पीड से रोटेट हो रहा है और मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लिखनी है। करेक्ट। तो सिंपली क्या आता है इसका वेलोसिटी, 2 पाई आर एन बाई 60, ये सार नो, या पाई डी एन बाई 60, एंड दिस इज रेडियस आर एंड इट कैन रोटेट विथ एनी स्पीड। तो पाई डी एन बाई 60 ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू डायमीटर गिवन है 300 मिलीमीटर और यहाँ पे एन गिवन है दैट इज 100 आरपीएम डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व करके आप मुझे बता सकते हो क्या वेलोसिटी आई। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या डायमीटर इन मिलीमीटर लिया है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड की स्पीड। करेक्ट। करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो 100 है और एक ये 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल सा आंसर मिलेगा फाइव पाई। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में करेक्ट कर रहा हूँ क्या, हेलो। एनीवन। करेक्ट है, इसका कैलकुलेशन करके आप मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो मैं खुद करता हूँ, नो प्रॉब्लम। 1.57, यस 1.57 इज करेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये 60 था, यस। और कुछ ज्यादा मैंने जीरो कट कर दिए, डोंट वरी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। क्या था ये, पाई डी यानी 300 इंटू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60, ऐसा। देखो करेक्ट, इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लेना। 1.57 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है, दिस इज करेक्ट आंसर प्रतीक। 1.57, यस 10⁻⁻⁴, यस प्रतीक करेक्ट है।
1.57 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो कट कर दिया था। और आंसर आपसे पूछा गया मीटर पर सेकेंड में, करेक्ट है। तो निखिल ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे 60 से आपको डिवाइड करना होगा, करेक्ट है। अगर मिनट में पूछा जाता तो सिंपल सा पाई डी एन से आंसर दे सकते थे, करेक्ट। समझ में आ गया दोस्तों। ये सिंपल से ऐसा है, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये तीनों जीरो इससे कैंसिल आउट हो गए, 3/6। ये सिंपल सा आता है पाई/2, और पाई/2 की वैल्यू 1.57 आएगी, करेक्ट है। तो आई थिंक ये बन जाएगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे की पॉइंट ये था कि स्ट्रिप की वेलोसिटी न्यूट्रल पॉइंट पे रोलर की वेलोसिटी के इक्वल होगा, बस। और जैसे हमें पता चल गया तो हमने सिंपल से रोलर की वेलोसिटी निकाला और हमने कह दिया कि यही रोलर की वेलोसिटी स्ट्रिप की वेलोसिटी होगी, करेक्ट है। तो दिस इज द की पॉइंट, इसी के लिए मैंने आपको इतना सारा पीछे ज्ञान दिया था, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, और हो सके तो कल की क्लास में हम लोग पहले प्रैक्टिस ही करेंगे और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स कल सीखेंगे, करेक्ट है। तो अ 4 मिलीमीटर थिक सेट इज रोल्ड विथ 300 मिलीमीटर डायमीटर रोज टू रिड्यूस थिकनेस विदाउट एनी चेंज इन विड्थ। तो चलो यहाँ पे डेटा लिखते चलते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ दोस्तों, दिस इज 300 millimeter to reduce its thickness without any change in its width. The friction coefficient at the work roll interface, that is mu, is given, that is 0.1. The minimum possible thickness of the sheet that can be produced in single pass. करेक्ट है, मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। मिनिमम पॉसिबल थिकनेस का मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है कि एच एफ की मिनिमम एच एफ की वैल्यू क्या होगी इन मिलीमीटर, करेक्ट है। तो इसका आंसर मुझे दे सकते हो दोस्तों, हेलो एनीवन, आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो सिंपल देखो, यहाँ पे मिनिमम रिडक्शन, मिनिमम पॉसिबल रिडक्शन की बात कर रहा है, तो सिंपल से मैं क्या ये रूल्स अप्लाई कर सकता हूँ, म्यू स्क्वायर इंटू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच, यस आर नो। और म्यू की वैल्यू क्या दी है, 0.1 स्क्वायर इंटू रेडियस इज गिवन, दैट इज 300, यहाँ डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 150, इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.1 स्क्वायर इंटू 150, दैट इज आई थिंक 1.5 मिलीमीटर, यस आर नो, करेक्ट है। तो याद रखना ये डेल्टा एच की वैल्यू है, और जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलती है और आपने ऑप्शन देखा और इमीडिएट आंसर दे दोगे, एंड दिस वन इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि डेल्टा एच है, हमें डेल्टा एच आंसर नहीं चाहिए, वी नीड एच एफ। तो डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं, सिंपली इट कैन बी रिटन एज एच एफ माइनस एच नॉट, ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, बोलो। या इसको हम ऐसे लिखते हैं एच नॉट माइनस एच एफ, करेक्ट। यहाँ से एच एफ क्या आ जाएगा, एच एफ कैन बी रिटर्न एज एच नॉट माइनस डेल्टा एच, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया ड्राफ्ट, करेक्ट है। और एच नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट्स वैल्यू इज गिवन ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन है 4 mm थिक शीट, देखो यहाँ पे पहले ही गिवन है 4 mm थिक शीट, तो ये 4 है एच नॉट माइनस डेल्टा एच की वैल्यू 1.5, तो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 2.5 मिलीमीटर, दिस इज एच एफ, करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन नहीं होगा प्रतीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन द कोल्ड रोलिंग ऑफ द सीट इंक्रीजेस विथ, मैक्सिमम ड्राफ्ट मतलब डेल्टा एच इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, म्यू स्क्वायर इंटू आर, इसी पे डिपेंड करेगा, इसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यस निखिल, करेक्ट आंसर सी। यहाँ पे बोलो इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड रोलिंग सीट इंक्रीजेस, इंक्रीज की बात कर रहा है, याद रखना, मतलब डेल्टा एच को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास दो तरीके, इधर बाय इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बाय इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस, यही दो तरीके जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्ट है। तो इंक्रीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डिक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये नहीं होगा, डिक्रीज इन रोल रेडियस,
ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग रोल वेलोसिटी, इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट है, म्यू बढ़ा के हम डेल्टा एच को इंक्रीज कर सकते हैं। यस आर नो? तो आई थिंक ये समझ में आ गया। वाई आंसर ए इज करेक्ट, वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनीवन? करेक्ट है। तो एक और प्रॉब्लम करना चाहोगे दोस्तों? बोलो फटाफट। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर इस क्लास को बाइंड अप करेंगे यहीं पे। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। यस प्रतीक, करेक्ट। निखिल, करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एच नॉट इज गिवन दैट इज 30 मिलीमीटर, एच एफ इज गिवन दैट इज 10 मिलीमीटर। Successive cold rolling passes using identical rolls of diameter 600 मिलीमीटर। तो डायमीटर क्या है यहाँ पे दोस्तों? 600 मिलीमीटर है। Assume that there is no change in width. Width क्या है यहाँ पे? Constant है। If the coefficient of friction between the rolls and the workpiece is 0.1, यहाँ पे mu is equal to क्या है? 0.1। The minimum passes required, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। Minimum passes required, is it clear? करेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि n क्या होगा। और ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मिनिमम पासेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होगा टोटल रिडक्शन इन हाइट। कितना आपको डेल्टा एच कम करना है, डिवाइडेड बाय एक सिंगल पास में कितना हाइट रिड्यूस होने वाला है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एच की बात करूं तो डेल्टा एच इज टोटल रिडक्शन, दिस इज टोटल रिडक्शन। टोटल रिडक्शन दैट इज एच नॉट माइनस एच एफ। और यहां से इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 30 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 20। तो 20 मिलीमीटर आपको हाइट रिड्यूस करना है दोस्तों। करेक्ट है। अब हमें पता करना है डेल्टा एच। तो यहाँ पे क्या करें, द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज रिड्यूस फ्रॉम दिस बाय सक्सेसिव कोल्ड रोलिंग। सक्सेसिव कोल्ड रोलिंग विथ आइडेंटिकल रोलर्स। करेक्ट है। तो एक बार सपोज आपने इस स्टेज में रिडक्शन किया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में रिडक्शन करेंगे, यस आर नो? लाइक दिस। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट स्टेज में रिडक्शन करेंगे। और दोस्तों याद रखना, इस केस में रोलर्स का जो डायमीटर है 1 2 3 एंड सो ऑन, इन सारे रोलर्स का डायमीटर इक्वल होगा। करेक्ट है, किसी का रोलर का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग आइडेंटिकल रोल्स ऑफ डायमीटर 600 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? तो आपको यही पता करना है कि हाउ मच नंबर ऑफ रिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू गेट डिजायर्ड हाइट, ये आर नो? करेक्ट। और हमें ये ऑलरेडी पता चल चुका है कितना मैक्सिमम रिडक्शन चाहिए। अब डेल्टा एच कैसे पता करें? तो सिंपल सा आपको रिलेशन पता है, डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। इस रिलेशन को मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू क्या है? 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज आर? रेडियस इज गिवन, यस आर नो? डायमीटर 600 है, तो रेडियस क्या होगा दोस्तों? 300। करेक्ट। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिलेगी 3 मिलीमीटर। ये क्या बताता है कि इन ईच एंड एवरी स्टेशन, हर एक स्टेशन में आपको मिनिमम जो हाइट में रिडक्शन है वो 3 मिलीमीटर का मिलने वाला है। करेक्ट है। सॉरी, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम रिडक्शन 3 मिलीमीटर का पॉसिबल हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन सिंगल पास दैट इज 3 मिलीमीटर। तो अब नंबर ऑफ पासेस, मिनिमम नंबर ऑफ पासेस की रिक्वायरमेंट क्या होगी? डेल्टा एच दैट इज 20 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3, यस आर नो? एक सिंगल पास में रिडक्शन, टोटल रिडक्शन डिवाइडेड बाय रिडक्शन पॉसिबल इन वन पास। तो ऐसे डिवाइड कर दे तो क्या आएगा दोस्तों? इट इज 6.667। अब दोस्तों याद रखना, कोई आधा अधूरा पास तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सानो? तो एटलीस्ट हमें कितने लगेंगे? 7 पासेस रिक्वायर्ड होंगे, ये सानो? एटलीस्ट वी नीड 7 पासेस। आपको अगर याद हो, टेंडम रोलिंग हमने कल देखा था, तो हमें यहाँ पे मिनिमम 7 स्टैंड्स की जरूरत है। 7 पासेस की रिक्वायरमेंट है इन सीरीज, तब जाके 30 मिलीमीटर की सीट को आप 10 मिलीमीटर की सीट में कन्वर्ट कर पाओगे एट गिवन कंडीशन, यस और नो? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन डी।
करेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ निखिल प्रतीक, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एनीवन, कि कैसे हमने कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ पासेस 7 यहाँ पे लगने वाले हैं। हेलो एनीवन? हेलो? चलो अब आप मुझे बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है क्या प्रीवियस सेशन में? एनीवन? प्रीवियस सेशन में अगर किसी को कुछ डाउट है तो फटाफट मुझे बता दो। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वन मोर थिंग, इस लेक्चर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक्स डली हुई है, दोनों ही अपने ग्रुप के, जिसमें आपको एक ग्रुप में नोट्स मिलता है मनीष सर क्लासेस ग्रुप में, और एक ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं सारे डिस्कशन। करेक्ट है, तो आप उस पर्टिकुलर चैट फोरम में डिस्कस भी कर सकते हो। तो बेटर है कि आप उन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारे जो क्लासेस हो रहे हैं उनके नोट्स टाइम से मिल सके। और कोई भी डाउट हो जो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, या फिर आप ग्रुप में डिस्कस करना चाहते हो, तो चैट फोरम के थ्रू आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। करेक्ट है। और वो टेलीग्राम का क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ प्रतीक। उसके लिए आई थिंक मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कोई पर्टिकुलर लेक्चर देखने को कहा था, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, ये जो क्वेश्चन नंबर 7.4 है, इसका तो मैंने आपको बताया कि इसका एक चैप्टर है, आप उसको देखिए, रिक्रिस्टलाइजेशन वाला। और आई थिंक ये चैप्टर नंबर 4 है, 3 या 4 है, 3 है शायद। करेक्ट है, तो उसको देखिए तो आंसर आंसर मिलेगा। नहीं मिले तो फिर बताना, तो फिर मैं बताऊंगा। करेक्ट है। तो चलो दोस्तों फिर यहीं पे सेशन को एंड करें क्या? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। करेक्ट है दोस्तों, कल हम लोग स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रोलिंग फोर्स एंड पावर एंड अलोंग विथ रोलिंग डिफेक्ट्स। और इसके साथ फिर हम इस रोलिंग पोर्शन को भी यहाँ पे बाइंड अप करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। करेक्ट है, तो चलिए फिर यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।